Good morning, students. In the running topic of metal and non-metals, today we will study about the covalent bond. Before this, we have completed till electrovalent bond, and the last topic was characteristics of ionic or electrovalent bond. Today we will see how covalent bond is formed. First, what is the meaning of the covalent bond? The bond that is formed by the mutual sharing of elements between the constituent atoms is known as covalent bond. Let's see through an example. Suppose that we have a element A and the another element is B, and A has one electron in its outermost shell, whereas B also has one electron in its outermost shell. So both they shared each electron to each other and form a covalent bond. It means simply if there are two electrons shared to each other, then a covalent bond is formed. That is known as SCB, single covalent bond. If there are more than two electrons, it means a pair of two electrons shared, then DCB is formed, means double covalent bond. If there are six electrons shared to each other, it means triple covalent bond is formed. इसका मतलब ये है कि these are the types of covalent bond: single, double and triple. So let's see through a example how covalent bond is formed. First one is formation of chlorine molecule. Let's see through example formation of chlorine molecule. Chlorine, it is made up of by the two atoms of chlorine. Chlorine, it has atomic number 17. It means chlorine is the member of halogen family in the periodic table, and the atomic number of chlorine is 17. The electronic configuration is 2, 8, 7. Means on the behalf of the Bohr and Parin, if we do electronic configuration of chlorine, then we get 2, 8, 7. It means in valence shell or outermost shell there are the 7 electrons of chlorine. So 2, 4 और 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन ये शो किए और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया जो शेयरिंग करेगा. ऐसे ही दूसरा एटम ले लेते हैं क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन जो है वो दो एटम से मिलकर के बना हुआ है. ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा 2, 2, 4 और 2, 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया. क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, यहाँ शो किया है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इस क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. सो ये एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा. ये इसको देगा नहीं, यहाँ पर क्या करेगा, शेयरिंग करेगा. सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद दिस एटम. तो यहाँ पर क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं. दीज आर द, यू कैन से दिस वन इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक, अब क्या बनेगा,
ये जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। यानी क्लोरीन एटम के, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर ये दो एटम जो क्लोरीन के हैं किसके द्वारा बने हुए हैं, आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के द्वारा बने हुए हैं क्लोरीन। यहाँ पर ये जो बड़ी लाइन है इट इंडिकेट्स दैट one electron of that atom and the one electron of that atom share to each other to form a chlorine molecule। ये क्या बनेगा जी, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्या बनता है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वो दो ये बचे और दो ये बचे, तो इनको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पूछा जा सकता है कि जब क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 3 इधर है और 3 ही इधर है। इट मींस कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है यानी क्लोरीन के दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा क्या करेंगे, बनेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट्स सी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। Let's see the formation of hydrogen chloride molecule. Hydrogen chloride molecule, it means it is made up of one atom of hydrogen and the one atom of chlorine. तो HCl की फॉर्मेशन देख रहे हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 1 होता है। इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अनदर 1। क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को शो कर लीजिए और इधर क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 तो 4 और 2 6। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके द्वारा शेयरिंग करेगा। इट मींस ये क्या करते हैं, अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में नियरेस्ट हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप यहाँ इस सर्किल के अंदर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। इट मींस इसने किसकी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली, हीलियम की। सिमिलरली दिस क्लोरीन एटम अटेन्स द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। ठीक, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इटसेल्फ। 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये क्या पूरा कर रहे हैं, शेयरिंग के द्वारा अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और जो बॉन्ड बनेगा उस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, इसको एक पड़ी लाइन के द्वारा हम क्या शो करेंगे, एंड दैट इज हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है जी, यहाँ क्या आता है, एक सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर? लेट्स सी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट bond. Now let's see types of covalent bond. There are the two types of covalent bond. Covalent bond can be differentiated on the basis of number of shared electron. First one is number of shared इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम या बिटवीन द एटम्स। ठीक है जी, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। और सेकंड वन इज चार्ज प्रोड्यूस्ड, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट वन इज, लेट्स सी, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। इसके आधार पर हम यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसके आधार पर दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड वन इज
double covalent bond, and third one is triple covalent bond. So let's see the type of first single covalent bond. इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. Hydrogen, it is made up of two atoms. Hydrogen atomic number is 1 and it has only one electron in its shell, outermost shell. It has only one shell, so there are one electron and another one electron, both share to each other to form a single covalent bond. We can represent it by this way. Means if you have got a इसको कहते हैं पड़ी हुई लाइन, ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स, देन इट इंडिकेट्स द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन, इट कंटेन्स टू एटम्स. ऑक्सीजन atomic number is 8. Electronic configuration is 2,6. It means it has 6 electrons in its outermost shell. So represent it with 6 electrons, means 2 or 2, 4 or 2, 6. Similarly, this atom 2 to 4 and then to 6. So this oxygen atom wants 2 electrons to attain a nearest electronic configuration. So it shares 2 electrons with this atom, so it gets the nearest electronic configuration of neon. Similarly, this atom shared 2 electrons of that atom to attain the nearest electronic configuration of an inert gas. So there are the 2 parallel lines between the 2 oxygen atoms which indicates the formation of double bond. यानी यहाँ 2 पड़ी हुई लाइन क्या इंडिकेट करेंगे? फॉर्मेशन को. किसके फॉर्मेशन को? डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन को इंडिकेट करती हैं. अब यहाँ देखिए, एक 2 पेयर के इलेक्ट्रॉन, एक पेयर यहाँ बचा, एक पेयर ये बचा, ऐसे एक पेयर ये, एक पेयर ये. इसको हमने क्या बताया? इसको कहेंगे आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी these are the shared electron. Whereas these 4 electrons of this atom are not sharing with this atom. यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं. This one is the example of double covalent bond. Similarly, let's see the example of triple covalent bond. Triple covalent bond, that is the example of formation of nitrogen molecule. Formation of nitrogen molecule. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस 2 एटम के द्वारा मिलकर के बना हुआ है. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5. So both the atoms with 5 इलेक्ट्रॉन. ये आ गया आपका 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 3. सिमिलरली यहाँ 3 और यहाँ आ गया आपका 2. इस नाइट्रोजन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स 3 more इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये क्या करेगा? यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा. Similarly, this atom also shared with the 3 electron of that atom, and there is a 3. यहाँ पर 3 पड़ी हुई लाइन आएंगी, which indicates the formation of nitrogen molecule. Clearly? और यहाँ क्या बचा? एक लोन पेयर ये बचा और एक लोन पेयर ये क्या बचा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. That is lone pair of electron. So these are the types of single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond with the example, particular example. आप क्या करेंगे?
आप और दूसरे एग्जांपल लीजिए, सिंगल बॉन्ड को बना करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, डबल बॉन्ड की प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर ये नहीं समझ आता है तो आप मेरे से इसको दोबारा पूछ सकते हैं। और सिर्फ आपने क्या करना है कि जो भी एटम को आप शेयरिंग करा रहे हैं, शेयरिंग क्या करते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आपने एक चीज देखी होगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का शेयर कर रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इस एटम का शेयर करेगा। अगर यहाँ इस पर्टिकुलर एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इसके भी 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इस एटम के भी केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसा नहीं है कि इसके 3 है और इसके 4 है। शेयरिंग जो होगी वो क्या होगी, बराबर की होगी। आप ये चीज बिल्कुल अपने माइंड के अंदर सेट करके रखेंगे तो बहुत आसान है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नाउ सेकंड टाइप है चार्ज प्रोड्यूस्ड। लेट्स सी सेकंड टाइप। नाउ it is of our second types on the basis of the charges produced. It is of 2 types. The first one is non-polar covalent bond. ठीक है जी, NPCB covalent bond क्या होते हैं ये? When both of the constituent atoms attract the shared pair of electrons equally, यानी जब क्या होंगे, when both the constituent atoms attract the shared pair of electrons equally, no charges will be developed on atoms. तो कोई चार्ज उनके ऊपर डेवलप नहीं होगा, and hence the bond will be a non-polar covalent bond. Let's see the example. Formation of hydrogen molecule. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और क्या बनाएगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहां एक चीज और नोट करने वाली है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 0, यानी सेम ही एटम है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ क्या है, हाइड्रोजन की 0 है और इसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। ड्यू टू दिस इज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर जी? नाउ सेकेंड वन इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड वन इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स डू नॉट have the same electrons forces, then the shared electron pair is pulled towards the atom having more attraction forces, therefore partially charges appear on the atoms. यहाँ क्या होता है कि चार्ज पार्शियल माने आंशिक रूप से एक एटम के ऊपर चार्ज डेवलप होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, whereas fluorine has 7. So fluorine has 9, outermost shell के अंदर 2,7 और there is a 1 electron in it, the shell of the hydrogen atom. तो हाइड्रोजन और यहाँ आएगा आपका फ्लोरीन 2, 4 और 2, 6। अभी क्या होगा एक्चुअली कि एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर ही कर रहा है, तो यहाँ इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस फ्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसलिए इसको कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है क्या, HCl, यानी
यहाँ पर भी एक चीज आपने ध्यान रखनी है, द डिफरेंस, क्योंकि यहाँ क्या हो गए, दोनों अलग अलग आइटम्स हो गए। ये आपका फर्स्ट ग्रुप के अंदर है और ये 17 ग्रुप के अंदर यानी हेलोजन फैमिली के अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सिंगल बॉन्ड आ रहा है यानी जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है वो ज्यादा है। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन इज इन द फर्स्ट ग्रुप। इसकी जो दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस। की चार्ज कहाँ डेवलप होता है, इसके अंदर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा इसलिए नॉन पोलर है। यहाँ पर पार्शियल चार्ज डेवलप होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट they are generally gases or liquid at room temperature. Clear? But the compounds of high molecular weights may be solid also. यानी ऐसे कंपाउंड जिनके molecular weight ज्यादा होते हैं वो solid state के अंदर पाए जाते हैं। Second one is they are not hard. ये hard नहीं होते हैं, and they are generally poor conductor or insulator, and they have low melting and boiling point. They are insoluble in water but soluble in organic solvent. They are insoluble in water whereas soluble in organic solvent. And the last one is they show slow molecular chemical reactions. So these are the characteristic features of covalent bond. Here is a question for you that differentiate between ionic and covalent compound. This is the question. After seeing this video, you will send the solution today till 5 o'clock. ठीक है जी, आप 5 बजे तक इस जो डिफरेंस है पर्टिकुलर, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, इसका आप मुझे PDF बना करके 5 बजे तक शाम तक सेंड करेंगे। इस वीडियो के अंदर कितना, केवल इतना ही, यानी इसमें इतना क्या, ये टॉपिक यहाँ आपका कंप्लीट होता है। मेटलर्जी इस बार इस चैप्टर से डिडक्ट कर दिया है, सो मेटलर्जी का कोई क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा। यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे या इसका असाइनमेंट आपको देंगे बनाने के लिए। तब तक आप इसको देखिए, इसका डाउट आता है तो पूछिए। ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।